ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ लाइफ एकदम अलग होती है। तो एंड में मुझे ऐसे ही फ़ोन आया कि मैम स्वरण घर आ गया है। अच्छा। मैंने पहले सोचा कि आप शायद मजाक कर रहे हो, तो नहीं, आप परसों आइए, प्रोमो शूट है। और जब मैंने रॉनी सर को, संगीता मैम को देखा, मैं ऐसे देख रही, मैं चुप ही कर गई। तो एक होता है ना कि मुझे पता ही नहीं था कि कौन कौन है इसमें। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਵੀ ਦੁਬੇ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਨੂ ਤੰਜਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਲੋ ਘੰਟੀ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂ ਮਦਰ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਗੇਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਮ 'ਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕਦਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਛੋੜਨੀ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਛੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸੀਰੀਅਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं थोड़ी हिंदी भी बोलूँगी। हाँ जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि सबको समझ लगनी चाहिए, क्योंकि हाँ। अगर सिर्फ हम पंजाबी बोलते हैं तो जो जिनकी लैंग्वेज हिंदी उनको पंजाबी बिल्कुल समझ नहीं आती है। क्योंकि जितने भी मैं शोज़ करती हूँ ऑलमोस्ट टीम सारी बॉम्बे की होती है, और जब मैं पंजाबी के कुछ वर्ड्स बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हिंदी में बोलो। उन्होंने पहले मतलब दसना उनको पड़ता फिर पहले मीनिंग बताना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पंजाबी जो होते हैं वो तो हिंदी भी समझते हैं, पर हिंदी पंजाबी बहुत कम समझते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी हिंदी भी टच लूँगी। मेरा जो फर्स्ट सीरियल था उसका नाम था तेरा रंग चढ़िया। अच्छा। उससे पहले मेरा विलाती भाभी जो जी पंजाबी के स्टार्टिंग शो स्टार्ट हुए थे, तो मेरी प्रेजेंट उसमें थी। तो उसके साथ ही मुझे तेरा रंग चढ़िया जो था वो ऑफर हो गया था। मामी करेक्टर, पम्मी मामी का करेक्टर बहुत ही अच्छा करेक्टर था। चुलबुली करेक्टर, मतलब कि उसका करेक्टर ऐसा था कि उसमें कोई करेक्टर ही नहीं छोड़ा होगा उसने। अच्छा। जैसे भुलक्कड़, चालाक चुस्त, चोरियां करनियाँ, उसमें बहुत कुछ एंटरटेनिंग इतना था कि अगर उसको करेक्टर को मैंने पूरा जिया है। मतलब कि पूरा ऐसा था कि बहुत फनी भी बहुत अपना था, समझ के किया, अपना समझ के मैंने वो करेक्टर प्ले किया और बहुत अच्छा, लोगों को भी बहुत पसंद आया था। ਤੇ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ स्वर्ण घर की। हाँ, ते वो भी है स्वर्ण घर। उसकी जो मुझे मेरे सारे करेक्टर देखे गए, क्योंकि तेरे रंग चढ़े के बाद मुझे तेरे दिल विच रहन दे, बानी का करेक्टर जो मुझे मिला था एज अ मदर करेक्टर, बहुत ही, वो जो लेडी थी वो बहुत ही एकदम शांत स्वभाव की, अपने बेटे के बारे में सोचना कि उसकी बहू उसके अकॉर्डिंग आएगी, ऐसी होगी वैसे होगी, घर हो, ऐसा करके। पम्मी मामी तो उल्ट।
उल्ट, एकदम उल्ट। और बहुत ही अच्छी उसका करेक्टर, बानी नाम भी बहुत अच्छा था उसका, हाँ करेक्टर जी। जो था बहुत अच्छा था। और ऐसे मुझे रिसेंट फ़ोन आया कि मैम आप कहाँ पे हो, तो मैंने कहा भी मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो कहते भी, क्योंकि मेरी बात ये 3 महीने पहले हो चुकी थी, पर मुझे शो का नाम नहीं पता था, तो उन्होंने बोला था कलर्स का शो है, तो आप करोगे? मैं कहा हाँ जी ज़रूर। तो मैंने कहा कि शायद भूल गए हैं या कास्टिंग चेंज हो गई है, तो मैं वो शो कर रही थी तभी रिसेंट मुझे दिसंबर के एंड में 1 ईयर हो गया है, तो एंड में मुझे ऐसे ही फ़ोन आया कि मैम स्वरण घर आ गया है। अच्छा। मैंने पहले सोचा कि आप शायद मजाक कर रहे हो, तो नहीं, आप परसों आइए, प्रोमो शूट है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा मेरा तो शूट चल रहा है। कहते आपने तो बोला था कि आप करेंगी। मैं कहा हाँ जी मैं करूँगी। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था उसमें कास्टिंग कौन कौन है, कौन कास्ट है, कौन स्टार कास्ट, कुछ नहीं पता था। रोनित सर थे, जब मैंने जाके गई प्रोमो पे तो मैंने देखा कि यहाँ तो स्टार कास्ट ऐसी है जो मैं फिल्मों में देखती थी इनको। तो रोनित सर को देखा तो एकदम मैं साइलेंट ही हो गई। फिर मैम संगीता मैम आए, तो मैंने उनका देश में निकला होगा चांद, जो मैंने सारे एपिसोड देखे थे उनके, तो उनको देखी मैं एकदम साइलेंट हो गई। और जो हमारे डायरेक्टर सर थे जो प्रोमो शूट करते हैं, वो डायरेक्टर और होते हैं, वो टीम होती है। तो वो मुझे कहते कि मेरा नाम उसमें करेक्टर था शर्वरी। शर्वरी। एक तो नाम मुझे इतना पसंद था ना, बंगाली नाम है। तो एक मेरी लुक थी साड़ी, साड़ी। आई लव साड़ी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾੜੀ 'ਚ। तो करेक्टर नेम जब मुझे पता चला ना कि शर्वरी, तो मैं कहा मुझे बहुत पसंद है। और जब मैंने रोनी सर को, संगीता मैम को देखा, मैं ऐसे देख रही, मैं चुप ही कर गई। तो एक होता है ना कि मुझे पता ही नहीं था कि कौन कौन है इसमें। तो सर आए, मुझे याद है आज भी फर्स्ट डे का मुझे प्रोमो आए, तो मैंने वो एक स्क्रिप्ट मुझे दी, तो उन्होंने बोला कि मैडम अच्छा आप कौन सा करेक्टर, मैं क्या शर्वरी, ओके ओके, अच्छा आपकी लाइंस कौन सी है बताना। तो मैंने वो मेरी लाइंस थी, थोड़ी भूल गई हूँ अभी, कि एक बच्चा, एक बेटा तो बड़ी मुश्किल से होता है, तो भगवान की कृपा होगी जो तेरे 3 बेटे हैं। तो उन्होंने पता क्या टॉपिक उठाया कि अगर आपने ये चीज़ बोल दी तो इट मीन्स लड़कियां सही नहीं है, जिनके घर में लड़कियां होती हैं तो वो क्या उसको अच्छा नहीं समझते हैं। अफेक्ट था उनकी बातों में। तो कहते अभी राइटर को फ़ोन करो, ये आप लाइंस नहीं बोलोगी। अच्छा। मैंने कहा ये क्या हो गया कि जो राइटर ने लिखा है बात बहुत बड़ी है अगर सोचा जाए। हाँ जी। तो मैंने भी सोचा ये चीज़ें, तो फिर उन्होंने लाइंस चेंज करवाई मेरी। अच्छा। हाँ, तो मुझे बहुत ये चीज़ उनका नेचर पता कि लड़कियों को वो इतना वो नहीं समझते कि लड़कियां हर काम में आगे हैं। हाँ जी। तो फिर मैम आए तो हमारा प्रोमो शूट हुआ सारा दिन। अपना जैन में 13 तारीख को प्रोमो शूट हुआ था। अच्छा। बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा था। रवि दुबे सर थे जो हमारे प्रोड्यूसर, और अपने सरगुन मैम, ये सब टीम थी और बहुत अच्छा गया शो हमारा। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਵੀ ਦੁਬੇ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। हाँ जी, बहुत ही नाइस पर्सन ने, हस्बैंड वाइफ ने, सारी दुनिया ਨੂੰ पता है। बहुत ही अच्छा, बहुत पोलाइट ने और आर्टिस्ट नाते बहुत ही ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਰਗੁਣ ਮੈਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਰਿਹਰਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ, स्टार कास्ट ਨੂੰ बुलाया जाता है कि कौन कौन है वहाँ पे। तो जब मुझे सरगुन मैम आई तो मैम बैठी हुई थी, सब टीम बैठी हुई थी, सब आर्टिस्ट थे। नाम मुझे भाविका चौधरी, काफ़ी जो भी इसकी टीम थी। तो जब मैम ने मुझे देखा तो आई, तो वो मुझे ना ऐसे कहते ये शर्वरी प्ले कर रही है ना। अच्छा। तो मैंने ऐसे टर्न किया तो मैं खड़ी हो गई। तो कहते जो शर्वरी छोटी नहीं है।
मतलब कि जो इसका करेक्टर था ना शर्वरी, वो बहुत समझदार है वो लेडी। मतलब कि वो उसने संगीता घोष की जो मतलब कि एक ऐसी फ्रेंड है बचपन से, तो इतनी वो समझदार, हर चीज़ उसको आती है शर्वरी को। और संगीता को वो सिखाती है उसको, इवन जैसे एटीएम चलाना नहीं आता, हाँ, मैं गाड़ी ਤੁਹਾਡੀ चलाना। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ मैं ਇਹ वो ती ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ आपने ਰਹੇ भी ਹੋ। देखी होगी। तो वो हर चीज सिखाती है, पैसे वाली है, उसकी हर चीज में मदद करती है। मतलब दोस्ती की मिसाल है वो शर्वरी और संगीता। वो मतलब आपने एक उसमें सीन भी था कि उसका हस्बैंड उसको बाजू में पकड़ के ले जाता है कि इसका साथ छोड़ दे, बट वो नहीं छोड़ती है शर्वरी, क्योंकि उसकी लाइफ में दोस्ती जो है वो सबसे ऊपर है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? हमारी लाइफ में दोस्ती दोस्ती करने का टाइम ही नहीं है। दोस्त अच्छे होते हैं, आपके हर दुख सुख में साथ होते हैं। और दोस्त मिलना सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे दोस्त है आपकी लाइफ में। ये तो जब दोस्ती इंसान करता है उसके बाद उसको पता चलता है कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। अगर अच्छे हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी, अगर बुरे हैं तो आपकी जो बनी बनाई लाइफ है वो ख़राब हो जाती है। और मैं थोड़ा दोस्ती से दूर ही रहती हूँ क्योंकि मैं इतना बिजी रहती हूँ, दोस्ती के लिए टाइम ही नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। शूट ही बहुत है, शूट है। और नोट जैसे डे एंड नाइट का शूट होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब ये होता है कि अगर टाइम मिला तो सो जाओ, अपनी नींद पूरी कर लो। बस। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जो मैं माँ का करेक्टर करती हूँ ना, तो ये एक होता ना, सपोज करिए एक लेडी है जो वो जाती है, बाज़ार जाती है, तो वो अगर फ्रूट की रेडी पे खड़ी होकर बोलती है ना सबसे अच्छा फ्रूट ले, है ना। अगर सेब है तो वो बोलेगी मैंने लाल लाल सेब लेने हैं, अच्छे दिखे। तो ऐसे ही एक माँ का जो मेरे अंदर जो मैं करेक्टर प्ले करती हूँ, तो मेरे अंदर ही ये, अगर कोई भी सीरियल जैसे मुझे ऑफर्स आती हैं तो मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि बजट नहीं पूछती हूँ, मैं सबसे ये पहले पूछती करेक्टर क्या है। अच्छा। जब वो बोलते हैं ना माँ का करेक्टर है, मैं एकदम साइलेंट हो जाती हूँ, क्योंकि आई लव करेक्टर मदर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करेक्टर जिन वो जो करेक्टर बताते हैं वो नहीं, मैं एक ममता जो होती है वो जाहिर करने की कोशिश करती हूँ कि जो रियलिटी है वो दिखे, जो ममता है वो मैसेज लोगों तक जाए। तो इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जितना भी काम किया उसमें एज अ मदर करेक्टर ही किया है, जिसमें मैं किसी की घर की बहू हूँ, है ना, फ्रेंड हूँ, पर हूँ तो मैं एक माँ। अगर स्वर्ण घर में मैंने एक माँ का किरदार किया तो उसमें भी मेरे 2 बच्चे दिखाए हैं, बेटा बेटी। माना कि उन्होंने शो ऑफ नहीं किए, क्योंकि स्टोरी ऐसे थी कि कभी अप एंड डाउन चेंज, कुछ भी, आर्टिस्ट बीमार हो गया है, कोरोना भी चल रहा था साथ में, तो बहुत सी प्रॉब्लम को फेस किया सबने। तो इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल मदर के ही कैरेक्टर में रहती हूँ कि हर इमोशंस दिखाने को मिल जाते हैं। हाँ जी। खुशियाँ भी मिलती है, अगर बेटे की शादी है तो उसकी खुशी अलग होती है, दुख तकलीफ होती है उसका अलग, ਉਹਦਾ अलग। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो काफ़ी पार्ट्स में एक मदर करेक्टर जो है ना प्ले करना बहुत बड़ी बात है। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत परेशानी आई थी कि तब मेरा तेरा रंग चढ़िया सीरियल चल रहा था, तो जब कोरोना एकदम हाई स्पीड पे था, तो उस टाइम पे शूट करना, इतनी प्रॉब्लम्स हमने झेली हैं कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये डेली एपिसोड है, डेली शूट करना पड़ता है। इसमें ये नहीं कि आप बैंक बना के रख लो 2 महीने पहले, डेली एपिसोड आप डेली शूट करोगे। तो उसमें क्या होता था कि ट्रैवलिंग नहीं, बंद हो गई थी, और मेरा जो ये शो था वो कोरोना से 1 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ था। तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ, तो जब उसकी हाई स्पीड हुई कि ऐसा ऐसा है, तो हमारे जो प्रोड्यूसर सर थे
तो उन्होंने बोल दिया कि अभी 15-20 दिन, 1 महीना घर कोई नहीं जाएगा, कोई ट्रैवल नहीं करेगा, अंदर ही रहना पड़ेगा। नो डाउट हम सेट के अंदर ही रहते थे, जितनी भी फीमेल्स थी उनको स्टे अंदर ही था, फूड भी अंदर प्रोवाइड था। और जब उन्होंने बोला तो ये चीज़ ये भी हुई कि अगर सारा सब कुछ ही बंद हो गया तो हम घर कैसे जाएंगे। तो शूटिंग का टाइम ऐसा था कि जो अलाउ किया गया था सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक, और जो शूटिंग का दायरा जितने लोग हैं वो 10 से 12 से ज़्यादा और नहीं कोई होगा। तो ऐसे मैनेज किया गया शूटिंग को लेके। फिर शाम को 5 से 10 शूटिंग करनी 10 लोगों में। तो इससे ज़्यादा क्या हुआ कि एपिसोड बहुत कम जमा हुआ, और एक सुबह के उठे 4 बजे उठना पड़ता था, 5 बजे हम रेडी हैं सेट पे, 10 बजे फिर हमें 5 बजे उस टाइम पे ही बस 4-5 घंटे सोना है। लंच डिस्टर्ब हो गया, ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब हो गया, डिनर डिस्टर्ब हो गया, तो फूड भी कहीं ना, हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब हुई है उसी में। तो बट लोगों ने बहुत अच्छा किया, हमने लोगों के लिए काम करते हैं, इंटरटेन करते हैं कि उनका मन लगा रहे, तो इसलिए ये काम हमें करना ही पड़ता, चाहे दुख हो तकलीफ हो। जैसे बोलते हैं ना पंजाबी में, मैं ना अपने ब्लॉग में, जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना उसमें ना पंजाबी एक वर्ड डालती हूँ। अच्छा। रिसेंट मैंने अभी स्टार्ट किया है, छुप छुप के करती हूँ क्योंकि डांट पड़ जाती है। तो वहाँ पे ना मैं पंजाबी एक वर्ड यूज़ करती हूँ कि किसी को समझ, फिर उसका ट्रांसलेशन भी हिंदी में बताती हूँ। अच्छा। फिर ये भी बोलती हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि जो पंजाबी है आपको कैसा वर्ड लगा। अच्छा। तो मेरे को अच्छा लगता है ये वर्ड्स जो है हिंदी में बताती हूँ और उसका ट्रांसलेशन करके भी बताती हूँ। तो सिर्फ ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए कि वो खुश रहें। ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? OTT देखिए, जब नो डाउट जनरेशन कौन सी सदी चल रही है आपको भी पता है, 21। हाँ जी। सब चेंजिंग है इसमें, जनरेशन ही चेंज है इसमें, न्यू यूथ है। और हम अगर मैं अपना करूं तो अब हम पिछाकर चले जाएं, नो डाउट, तो आज भी हमें टीवीज़ पे ये सीरियल जो पारिवारिक होती हैं, ठीक है, फिल्में पारिवारिक होती है पंजाबी, वो अच्छी लगती है। OTT हम, मुझे लगता है फैमिली ज़्यादा नहीं कंफर्टेबल है कि OTT एक फ़ोन पे आप देख लो। बहुत, हाँ, जो कॉलेज के बच्चे हैं या न्यू यूथ है वो ही ज़्यादा इसको रेकमेंड कर रही है, बट फैमिली रेकमेंड नहीं कर रही है अभी भी वो सीरियल पारिवारिक जो होते हैं, जो सारी फैमिली बैठ के देख पाए, वो चीज़ें देखती हैं। पंजाबी फिल्में, कॉमेडी फिल्में वो देखती हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ नो डाउट जैसे बोल्ड कंसेप्ट आ चुके हैं, वो फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती है। पर जो चीज़ें आ रही हैं उसको रोका भी नहीं जा सकता। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। क्राइम स्टोरी क्राइम स्टोरी है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अलर्ट करने के लिए उन्होंने ये दिखाई है मेहनत। जो वो क्राइम जो आप बोलते हो, आप भी आपने नाम ले ही रहे हो, काफ़ी कंसेप्ट है, बताइए हाँ कौन कौन से आप बताना। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें और भी कई हैं, बहुत सारे हैं जो कि सारा दिन लगा रहते हैं, सारा दिन, ठीक है। उन्होंने मेहनत की, वो देखिए करेक्टर कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। जो प्ले करना है ना एक बैगर का और एक मेड का, ये सबसे डिफ़िकल्ट करेक्टर होते हैं, ठीक है। देखिए हर लाइफ को एकदम सच्चाई दिखानी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, उन्होंने क्राइम स्टोरी जो सावधान इंडिया उन्होंने अलर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नेगेटिव पॉइंट में लेके जाके जो चीज़ें सही हैं उसको आप गलत कर दो। ऑलमोस्ट क्या हो रहा है कि सारा दिन क्राइम स्टोरी, ठीक है। इंटरटेनमेंट चैनल्स बहुत कम है, ठीक है, उनके टाइमिंग इवनिंग में है। क्राइम स्टोरी सुबह लगा लो आप 5 बजे, वही लगा होगा। उससे क्या हो गया कि मेल्स में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो घर ख़राब हो रहे हैं ना, मेरा थॉट है कि जो ऑलमोस्ट
घर खराब होते हैं वो इसको ज़्यादा देख देख के, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी आ गई है कि जो स्टोरी वो देखते हैं, पहली बात तो है, अगर वो उसका वो सही पॉइंट नहीं देखेंगे, है ना, उसका जो चीज़ें सही है, सब घर में परिवार ठीक है, तो उसको क्या अगर मैं चला गया तो कहीं ये तो नहीं ये कर देगी। आप सोचो, एक फीमेल के ऊपर जो अपना घर परिवार छोड़ के शादी करके ऑपोजिट पर्सन के घर में आती है, अ, उसको क्या मिलता है? मुझे आप बताओ पहले। कुछ नहीं मिलता। अगर शादी के बाद कोई घर किसी के नाम तो नहीं लगा देता है, वो उसने तो अपना घर छोड़ दिया, ठीक है, बच्चे पैदा करे औरत, घर संभाले एक औरत, ठीक है, और नेगेटिविटी को भी झेले एक औरत। मैं ये नहीं बोलती हूँ सब सही है, कुछ गलत भी होती होंगी, पर रीज़न तो देखो आप उसके पीछे। पहले कोई मन से या तन से नहीं बोलेगा मैं गलत हो जाऊँ, बस उसको ऐसा टॉलरेट किया जाता है कि इंसान ना चाहते हुए भी गलत हो जाता है। पर उसको मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर चीज़ें सही है तो उसको गलत मत करो, उसको अच्छा करो। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। जैसे बोल्ड कंसेप्ट आ चुके हैं, ओटीटी की आप बात कर रहे हो, जैसे वेब सीरीज़ हैं, तो इन्होंने क्या होता है कि अट्रैक्शन न्यू यूथ की कहाँ पे होती है? बोल्ड कंसेप्ट पर। तो हर किसी को ये जो एक लाइन होती है ना कि जो आप बोल रहे हो कॉम स्टोरी जो होती है, इतना मुझे नहीं लगता दिखाना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक बैठ के देखता है तो वो नेगेटिविटी ही आती है। एक कॉमन सेंस, वो भी हमें पता है, एक जैसे रेप का दिखाते हैं कुछ भी, तो हमें भी पता है कि रेप कैसे होता है, था ना। आजकल अगर ओटीटी पे इतना कुछ आ गया तो थोड़ा सा कम दिखाना चाहिए कि परिवार सिर्फ कंसेप्ट देखे, इतना नहीं कि वो 4 लोग बैठ के भी ना देख पाए, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो समझ वही होता है कि जितना समझाओ अपने घर में बस खुशियाँ रखो, समझदारी रखो, सबसे बेस्ट है। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ नहीं ਕਰਦੇਗੇ। बिल्कुल नहीं देखते हैं बच्चे, क्योंकि अगर आप एक क्राइम स्टोरी इतना देख रहे हो तो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, उसका फ्रेंड सर्कल भी है, ट्यूशन भी जाएगा, स्कूल भी जाएगा। अगर उसने सच बोल दिया कि मैं आज पार्टी पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर को फ़ोन करके पूछो कि ये जा रहा है। नेगेटिविटी वहाँ से स्टार्ट होती है। या तो आप पहले विश्वास ट्रस्ट करना सीखो, आपके बच्चे अपने बच्चों पे नहीं करोगे, इस पे करोगे आप। तो इसी वजह से छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, बच्चे दूर होना शुरू हो जाते हैं, वो अकेले रहना पसंद कर देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में पसंद करते हैं, फैमिली को टाइम कम दे देते हैं, दूर हट जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो नेगेटिविटी हमारे प्रति सोच रहे हैं, बल्कि उनके मन में कुछ भी नहीं होता है। तो समझना, मैंने ये नहीं कहती, बहुत समझते भी हैं। आज मैं रील्स ऐसी कुछ ऐसी फैमिलीज़ को भी जानती हूँ कि बहुत प्राउड फील करते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो ऐसी फैमिली होनी चाहिए, टाइम दो आप उनको और ट्रस्ट करना सीखो, ट्रस्ट पे ही हर चीज़ें। एक मरीज जब हॉस्पिटल में पड़ा होता है तो वो किसके बलबूते पे आता है आप बताओ? अपने परिवार पे, डॉक्टर पे। परिवार तो ले आया उसे, डॉक्टर पे ट्रस्ट पे है ना, इसने मुझे बचा लेना है, जो कि उसको जानता भी नहीं होता है। अब लॉजिक देखो, उसको जानता नहीं है कि वो उसने कहाँ से डॉक्टरी की, ये भी नहीं पता है, किस परिवार से, उसको ये भी नहीं पता है। उसको ये पता है कि ये DR डॉक्टर है, इसने मुझे बचा लेना है, बस एक विश्वास। देख लीजिए आप, तो ये बच्चों पे क्यों नहीं हम करते, अपनी फैमिली पे क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं बोलती हूँ, औरतें आजकल की जो जनरेशन है वो चेंज हो चुकी है, किसी को अपने मन की इच्छाओं को नहीं मानना चाहिए और हमेशा सपोर्ट करो एक दूसरे, अपनी लाइफ को या अपनी फैमिली को। अगर हम ससुराल में हम बोलते हैं हमारी बेटी है, हमारी बेटी जॉब करती है, तो जो बगानी हम लेके आए हैं वो भी तो काम करती है ना, उसकी भी मन की इच्छाएं हैं, वो क्यों नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? बहुत अच्छा, मेरे बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा।
बल्कि मेरे बच्चे जब बहुत कम बताते हैं कि मेरे मम्मा टीवी पे आते हैं। एक होता है ना टिपिकल वाला, हाँ जी। टीवी पे आते हैं। तो जब उनके फ्रेंड्स को पता चलता है, उनकी फैमिलीज को पता चलता है, अच्छा ये अच्छा इस मेरे बेटे का हरमन नाम है, अच्छा ये हरमन की मम्मा है, कब आएगी, कब मिलाओगे, तो बहुत प्राउड फील करते हैं बच्चे मेरे, बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ? मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले यही है कि किसी भी चीज़ को लेके ट्रस्ट बहुत मायने रखता है। ट्रस्ट हर फील्ड में, चाहे वो घर परिवार में, काम के प्रति या अपनी लाइफ के प्रति, ये चीज़ होनी चाहिए ज़रूर। इसी वजह से ही इंसान आगे होता है। और मेरे एक काफ़ी 2-3 प्रोजेक्ट है जो मुझे ऑफर्स किए गए हैं। अभी मेरा तिया मेरियाँ चल रहा है, तो अभी मैं चंडीगढ़ छोड़ के नहीं जा रही हूँ। अभी है ये पूरा करके, शशि सुमित प्रोडक्शन है, इनके काफ़ी बॉम्बे शो चल रहे हैं, उनके भी ऑफर्स आए हैं। बट करेक्टर प्ले करना है, कहीं भी करना है, तो बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ऑफर्स हैं काफ़ी, जैसे कि बड़े अच्छे लगते हैं, इमली शो की भी मुझे आई थी, ठीक है, और काफ़ी शोज़ हैं। बट अभी इनको इसका कंप्लीट करके थोड़ा गैप दे के फिर कुछ नया देखूंगी मैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੂ ਤੰਜਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ।